Welcome to Code Space, myself Jugayu. In this particular video हम समझेंगे maximum XOR of two numbers in an array, right? So question कहता है कि आपको एक array given है, ठीक है? And you have to randomly choose two different numbers. For example, I chose 10 and 2, ठीक है? इन दोनों को XOR लेते हैं. So 10 is represented as 1010 in bit format and 2 is represented as 10, right? इनका अगर मैं XOR लूंगा तो it will give me 0, that it is 0 also here, 0 0 0 and it will be a 1 here, followed by all the zeros. So this particular value is 0 1 2 3, that is it is the value of 8, ठीक है? तो 10 and 2 का XOR आता है 8. Similarly मेरे को सारे combinations बनाने हैं and I have to return the maximum number obtainable, right? Suppose 8 और 5 का अगर मैं करना चाहूँ तो 1000 and 5 is represented as 101. So if I take a XOR of these two, I will get 1101, which will be equals to 8 plus 4 plus 1, which is equal to 13. 13 is actually greater than 8, so my priority of 8 and 5 is actually more than 10 and 2. Similarly, I have to traverse all the array, find two elements which will return the maximum XOR. ठीक है? Now करना कैसे है? So I have an array, right? I have to find two elements. So हमारे जो number of elements है वो 2 है जो fixed है. एक array है वो भी fixed है. And we have mentioned it multiple times on this YouTube channel कि जब भी हमको number of elements fixed होते हैं, we have to go through loops. ठीक है? So what will I do? I will say I going from 0 to n minus 1, and because I have to just form the pairs, तो I, J और J I same है, तो instead of going from J to 0 to n minus 1 की जगह J को मैं I plus 1 से n minus 1 ले जाऊंगा, right? And मैं यहाँ पे एक आंसर स्टोर कर लूंगा. Let us say my answer is in the beginning of the loop is equal to 0, and in the middle of the loop it will be answer equals to maximum of answer and the XOR between the elements present at I and J. That is A of I XOR. XOR को ऐसे लिखते हैं, right? 5 के ऊपर 6 के ऊपर shift 6 लिखोगे तो XOR का सिंबल आ जाएगा A of J. ठीक है? Now this will give me the maximum element at the end of the loop, which is answer, and I can return it. ठीक है? हमारा टाइम कितना लगा? N from this loop, N from this loop, and I am getting a total time of O of N square. Space मेरा O of 1 लगा. ठीक है? That is easy. Now the problem is कि O of n square नहीं चाहिए. Is it able? Will I be able to solve it in the less time complexity? क्या मैं इसकी time complexity कम कर सकता हूँ? Obviously, I can try. Let us see how. To get to the optimized approach, आपको समझना पड़ेगा कि XOR काम कैसे करता है. So understanding XOR. XOR की जो truth table होती है वो कहती है अगर दो bits अलग-अलग हैं तो 1, अगर same है तो 0. That is, in the case of 1 1, it will return 0. In the case of 1 0, it will return 1. In the case of 0 1, it will return 1. In the case of 0 0, it will return 0, right? अगर दो बिट्स सेम पोजीशन पे हैं और उनका वैल्यू सेम है तो वो XOR का 0 दे देगा, अदरवाइज इट विल गिव 1. अब बिटवाइज और कैसे होता है? फॉर एग्जांपल 10 और 2 को देखें तो 1 0 1 0 इज द बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10 और 0 0 1 0 इज द बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2. ठीक है? हम आते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे 1 और 0 है. लेट अस सी 1 और 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? इट इज 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. 0 और 0 है, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल में क्या है? 0, पुट अ 0 हियर. 1 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 0, पुट अ 0 हियर. 0 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर भी 0, पुट अ 0 हियर. नाउ दिस नंबर इज एक्चुअली 8, bitwise representation of 8. That is how I calculate my bitwise XOR operation, right? Now as you can see, I have to maximize my XOR. I have to maximize my XOR, right? इन द इनिशियल मतलब जो पिछली अप्रोच हमने करी, हमने उसके अंदर एक लूप लगाई जिसके अंदर हमको दो डिफरेंट एलिमेंट मिल रहे थे, उसका XOR ले रहे थे, एंड इफ दैट वाज XOR वाज एक्सीडिंग द करंट वैल्यू ऑफ माय आंसर, देन हम आंसर को अपडेट कर रहे थे. एज सिंपल एज दैट. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि XOR मैक्सिमाइज कब होगा? XOR मैक्सिमाइज कब होगा? दैट इज मैं 2 को 10 के साथ XOR करूं या 25 के साथ XOR करूं टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू, राइट? सो एज यू कैन सी कि अगर मैं ये वाली वैल्यू लाइक इफ देयर इज अ लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो इंट हमारी वैल्यू होती है ना, दैट इज 32 बिट्स लॉन्ग, राइट? सो हमारी जितनी भी बिट्स हैं दैट आर लेस देन इक्वल 32, हमको 32 बिट्स में ही एक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं इन द केस ऑफ इंट डेटा टाइप. हमको जो एरे गिवन है वो इंट डेटा टाइप गिवन है. अगर वो लॉन्ग लॉन्ग होता देन वी वुड हैव गॉन फॉर 64 बिट्स, बट हमको इंट गिवन है, वी आर गोइंग टू टिल 32 बिट्स. सो हमारी 32 बिट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टिल 32. ठीक है? सो अगर 2 रिप्रेजेंट करूंगा तो इट विल रिप्रेजेंटेड एज 0 0 0 0 ऑल द वे अप टिल 1 0. ठीक है? तो दिस इज माय 0th बिट, फर्स्ट बिट, ऑल अप टिल 31st. 31 क्यों?
ये 32 बिट्स टोटल थी, अगर मैं 0 से चालू करूंगा तो इट विल एंड एट 31, राइट। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस बिट विल एक्चुअली बी वेरी मच, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिलता है, हमको जो वैल्यू यहाँ पे होती है ना, दिस विल बी कंप्यूटेड एज 0 into 2 to the power 31 plus 0 into 2 to the power 30 all the way up till 1 into 2 to the power 1 plus 0 into 2 to the power 0। तो यहाँ से मेरे पास 2 आ जाता है और 0 के और बाकी 0 के वजह से सब कुछ 0, तो मैं इनको सम कर रहा हूँ तो मेरे को वैल्यू मिल रही है 2। ये होता है बिटवाइज का सारा खेल। नाउ इफ यू कैन सी 2 to the power 31 is the maximum number, right? मतलब maximum as in maximum bit, अगर यहाँ पे 1 होगा तो मेरा नंबर सबसे ज्यादा बढ़ेगा, राइट, कंपेयर टू अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ, यहाँ पे 1 रखूँ या फिर हर जगह 1 रखूँ, तब भी वो 2 to the power 31 से कम ही रहेगा, राइट। नाउ टू गेट दिस कंक्लूजन मैं क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा 25 के और बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, राइट। तो 25 की बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए लेट अस सी 25 को लेट्स से थोड़ा इजी कर लेते हैं, 10 और 8 की निकालते हैं। 10 की बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन है 1010, राइट। 8 की रिप्रेजेंटेशन है 1000, ठीक है। 2 के हमको पता है 0010। अब मैं 2 को किसके साथ करूं ताकि मेरा आंसर मैक्सिमाइज हो जाए। नाउ मैं बोलूंगा 0 है यहाँ पे, राइट, 0 है। अब मैंने कहा था कि फॉर द जोर मेरे को डिफरेंट बिट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो दोनों इस केस में 1 दे रहे हैं, ओके, मैक्सिमम बिट 1 हो गई है, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे आया, अभी इस केस में भी दोनों 0, इस केस में 1 है, आई वॉन्ट 0, मतलब कि मेरी प्रायोरिटी देखो, मैं यहाँ से चेकआउट करना कोशिश कर रहा हूँ, राइट। आई एम चेकिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड बिकॉज आई नो कि अगर ये वाली वैल्यू अगर मेरी इक्वल नहीं हुई और मेरा वैल्यू बढ़ गया, आई विल हैव टू गो विद दैट बिकॉज मेरे को तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, राइट। दैट इज समथिंग लाइक सेइंग, आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे पास एक नंबर है, लेट्स से 0 1 1 1 एंड दूसरी बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन 1 0 0, ठीक है। मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से इट इज 0 एंड इट इज एक 0 ही नंबर है, मेरे पास पूरा नंबर 0 है। मैं किसके साथ करूं, किसके साथ इसका जोर लूं कि मेरा मैक्सिमम हो। कैन यू ट्राई टू ड्रॉ द इन्फ्रेंस विदाउट टेकिंग द एक्चुअल जोर, क्या आप बता सकते हो कि मैं इस 0 का इन दोनों नंबर्स में से किसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम आएगा। तो यू विल से बिकॉज जितना हम लेफ्ट में देखते हैं उतना ज्यादा हमारे लिए बेटर है, राइट, उतना बड़ा नंबर हमको मिलेगा। सो दिस 0 शुड एक्चुअली गेट अ 1 टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। सो हम अगर इस नंबर के साथ प्रोसीड करेंगे विच इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8, then we will get a maximum XOR value in the case of this, right? So हम क्या करेंगे, we will be making something like a try structure, ठीक है। ट्राई किस लिए बनाएंगे, हम स्टोर करेंगे कि क्या कोई ऐसी बिट है, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 1 मतलब जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेट हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज लेट मी एक्सप्लेन कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब हम ब्रूट फोर्स सॉल्व कर रहे थे व्हाट डिड वी डू, हमने i को चलाया था 0 से n-1 के लिए और j को चलाया था i + 1 से n-1 के लिए, राइट। तो j हमेशा i से आगे ही रह रहा था। इस केस में भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, हम बोलेंगे यार कि 25 के पहले कोई भी एलिमेंट नहीं, 25 को हम किसी से पेयर नहीं कर पा रहे, राइट। वी कैन पेयर 25 विद 10 2 एक्सेट्रा, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं 25 से आगे नहीं जा रहा, मैं 10 को 25 से पेयर करूंगा, 25 को 10 से नहीं। मैं इट इज लाइक माय फैशन, मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2 बार नहीं कर रहा, आई एम जस्ट गोइंग विद i, j, मैं i से पहले पहले एलिमेंट ले रहा हूँ। 25 पे आया, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, सो व्हाट विल आई डू, आई विल से आई ऑलरेडी हैव माय 25, आई विल कम टू 10 एंड आई विल से कि 10 फ्रॉम द गिवन नंबर्स, मतलब कि मेरे पास अभी गिवन नंबर में से 25 है, चूज व्हाट विल बी योर मैक्सिमम आंसर, ठीक है। 10 आएगा, 10 बोलेगा कि मेरी बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन है 0 1 0 1 0, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है 1 1 0 0 1, ठीक है। मैं इसके साथ ना बिटवाइज और लेता हूँ, ठीक है। मैं ले लूंगा 1 1 0 0 1, क्या वैल्यू आएगी 1 1 0 0 1, राइट। वैल्यू निकाल सकते हैं 1 0 1 2 3 4, 16 + 1 + 2 विच इज इक्वल्स टू 19। तो 10 बोलेगा मेरे को मैक्सिमम वैल्यू 19 मिल रही है अपने लेफ्ट वालों के साथ आंसर निकालने पे, ठीक है। उसके बाद मैं बोल दूंगा कि 2 के लिए 25 और 10 दोनों में, ठीक है। नाउ द गेम स्टार्ट्स। सो मेरे पास 1 1 0 0 1 है एक ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज 0 1 0 1 0, मेरा खुद का नंबर है 0 0 1 0, राइट। अब मैं स्टार्ट करता हूं, एज वी नो कि जितना लेफ्ट से चालू करोगे उतनी बड़ी वैल्यू मिलेगी। अगर लेफ्ट वाले को 1 बना लिया तो राइट में बेशक सारे 0 हो जाए, मेरा नंबर फिर भी बड़ा है। तो आई विल स्टार्ट वॉचिंग इट फ्रॉम हियर, ठीक है। इन सारी बिट्स पे फोकस करूंगा। मेरी ये बिट 0 है, तो इस बिट को मैक्सिमम करने के लिए आई विल हैव टू चूज 1। तभी तो मतलब जोर क्या करता है, जब डिफरेंट होता है तभी 1 देता है ना। तो अगर मेरे को 1 चाहिए और मेरे पास 0 है, अब मेरे को एक 1 ही चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा 1 है, ये वाला 1 है, ठीक है। ये वाला 1 है तो मैं इस 1 के पास आऊंगा
और मैं बोलूंगा ठीक है मैंने 1 ऐड कर लिया। 1 ऐड कैसे करूंगा, आई नो कि 0 1 2 3 4 ये फोर्थ पोजीशन पे है, सो आई विल से माय रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4। ठीक है, अब इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 स्टोर। अब देखो मैं यहाँ पे आऊंगा 0 पे, 0 बोलेगा मेरे को फिर से 1 चाहिए। अब ये वाला 1 या 1 कौन सा लूं, बिकॉज मैं ये वाला 1 ले चुका हूं तो मैं ये वाले इस वाले के तो नंबर भूल ही सकता हूं ना, भूल ही चुका हूं। तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, दिस 1 इज चेंज टू दिस 1, दिस 0 दिस 0 दिस 1। ठीक है, सिमिलरली 0 1 1 0 ये वाला। बट अगर कोई नंबर आ जाता है 1 1 0 0 1, एक तो ये नंबर है, दूसरा नंबर हो गया मेरा लेट्स से 1 0 0 1, ऐसा कुछ नंबर है। सो व्हाट विल आई डू, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग टू इंस्टेंसेस सेपरेटली, क्योंकि मेरे को लूप नहीं करना, मैं बोलूंगा मेरे पास 1 के साथ एक 1 है, उसके साथ 0 है, उसके साथ 0 है, उसके साथ 1 है, एंड इसी 1 के साथ एक 0 है, 0 है, 0 है, 1 है। राइट, करेक्ट। नाउ तो आपको जो चाहिए, मतलब कि मैं स्टार्टिंग करूंगा लेफ्ट से, अगर मेरे को 1 चाहिए था तो आप इस वाली चेन पे निकल जाओ, अगर आपको 0 चाहिए था तो इस वाली चेन पे निकल जाओ, एंड दैट विल गिव माय आंसर। हर चेन की लेंथ 32 रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी इंटीजर 32 से रिप्रेजेंट होती है। सो वी विल बी स्टार्टिंग द लूप फ्रॉम 32। तो हमारा जो आई है वो 32 से चालू होगा, और वी विल चेक दैट बिट 32 देन 31 देन 30 देन ऐसे करते करते 0 तक, एंड देन वी विल कैलकुलेट आवर आंसर। I know this is a bit confusing, but when I will write the pseudocode, you will actually get an instance कि हम कहना क्या चाहते हैं, and obviously we will run the dry run as well. So I am writing the pseudocode, please follow me along. What I am trying to do, मैं एक try बनाऊंगा। ठीक है, ट्राई के मेथड अभी बताता हूँ मैं क्या करूंगा। मैं उसका लूप बनाऊंगा मेन मेथड में, फॉर I गोइंग फ्रॉम 0 अप टिल n माइनस 1। ठीक है, सब फ्रॉम 1 से चालू करते हैं। मैं क्या बोलूंगा, ट्राई डॉट इंसर्ट एरे ऑफ 0। फर्स्ट एलिमेंट को तो इंसर्ट ही कर दो, क्योंकि उसके साथ तो किसी को पेयर ही नहीं करना। फिर 1 से चालू करो, क्या करोगे, यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू 0 भी बना लो। ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ जो करंट रिजल्ट है प्लस ट्राई डॉट मैक्सी मैक्सी लेट्स से इसके अंदर ए आर आई भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्राई डॉट इंसर्ट ए आर आर आई, पहले मैक्सिमम फाइंड करो उस एलिमेंट का, उसके बाद उसको इंसर्ट कर दो। राइट, एट लास्ट रिटर्न रिजल्ट। मेन फंक्शन आपको यही कहेगा। अब ट्राई क्या कहेगा, सो लेट मी राइट इट डाउन। ट्राई हमने दो मेथड लिखे, मैक्सिमम और इंसर्ट। पहले इंसर्ट समझते हैं, इंसर्ट क्या कर रहा है। सो इंसर्ट मेथड क्या करेगा, आपका एक नंबर लेगा। ठीक है, इंसर्ट एक नंबर लेगा, उसके अंदर क्या करेंगे, हम बोलेंगे रूट इक्वल्स टू, सो टेम्प इक्वल टू रूट। हमने जो ट्राई बनाया है यहाँ पे, हम ट्राई इनिशियलाइज भी करेंगे ना फर्स्ट ऑफ ऑल इसको, तो हमने एक रूट बना दिया, उसका टेम्प को रूट असाइन कर दिया। नाउ सिंपल इंसर्शन जो ट्राई में इंसर्ट करते हैं वही, हर बार इंसर्शन में 26 अल्फाबेट रखते हैं ना, यहाँ पे हमको 0 और 1 ही चाहिए, तो हम ट्राई का जो एरर, ट्राई नहीं ट्री ही है। राइट, ट्राई नहीं ट्री ही है, क्योंकि इसके चिल्ड्रन दो ही है। सो इफ रूट की जो नंबर की जो बिट है, कौन सी बिट, लेट मी राइट इट डाउन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट मी क्रिएट सम स्पेस। इंसर्ट फंक्शन लिखना है ना, यस, इंसर्ट फंक्शन लिखते हैं हम पहले, विच इज टेकिंग अ नंबर n। ठीक है, हम बोलेंगे रूट टेम्प इक्वल्स टू रूट, हमको रूट मिल गया जहां से सारा का सारा स्टार्ट है, मतलब हमारा जो मेन गढ़ होता है ट्राई का वो मिल गया, हेड ऑफ द बाइनरी ट्री, हेड ऑफ द ट्राई मिल गया हमको। ठीक है, मूविंग ऑन, आई विल से फॉर i इक्वल टू 31 से लेके 0 तक, क्योंकि मेरे को 31st बिट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है, तो मैं 31st से चालू करूंगा। पहले फाइंड करो बिट क्या है, बिट इक्वल्स टू नंबर को राइट शिफ्ट कर दो, मतलब अगर मैं इस नंबर को 5 बिट राइट शिफ्ट कर दूंगा तो इट विल बी पहले 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। राइट, सो n राइट शिफ्टेड बाय i पोजीशन एंड 1। अगर ये 1 होगा, मतलब ith बिट अगर 1 होगी तो बिट के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा, अदरवाइज 0 स्टोर हो जाएगा। अगर मेरी बिट जो है वो इक्वल टू 0 है, तो चेक करो कि रूट के पास 0 है कि नहीं है। देन इफ रूट का जो 0 है वो नल है, इन दैट केस रूट के 0 को एक नोड असाइन कर दो, इक्वल टू न्यू नोड। नोड को भी डिफाइन करेंगे, नोड के अंदर कुछ, नोड के अंदर दो वैल्यू होते हैं 1 और 0। ठीक है, दो चाइल्ड है, लेफ्ट और राइट की जगह 1 और 0। ठीक है, उसके बाद रूट को पुश कर दो आगे, रूट इक्वल टू रूट का 0, सेम पोजीशन बनेगी 1 की। तो क्या होगा, 25 आएगा, तो रूट अभी एम्प्टी है, रूट के 1 पे
एक नोड बन जाएगा, फिर रूट के 1 पे एक और 1 बन जाएगा, एक और नोड, फिर रूट के 0 पे एक और नोड बन जाएगा, उसके 0 पे एक और नोड बन जाएगा, और उसके 1 पे एक नोड बन जाएगा। जैसे ही 10 आएगा, 10 इंसर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10 बोलेगा 0, मतलब यहां से 0 पे चले जाओ, फिर 1 पे चले जाओ, फिर 0 पे, 0 यहाँ पे, फिर 1 पे, एंड देन 0 पे। ठीक है, फिर 2 आएगा, 2 इस पे चलेगा, मतलब कि 0 यहाँ पे, इसके 0 पे। तो यू कैन सी कि मैंने नया नोड नहीं बनाया 0 का, मैंने उसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरा इंसर्ट का चलेगा। नाउ जब मेरे पास 8 आएगा, 8 बोलेगा मेरी बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन है 0 1 1 0। इसके अंदर हम सेम लिखेंगे, आई एम टेलिंग द फंक्शन ऑफ फाइंड मैक्स, फाइंड मैक्स भी कुछ ऐसा ही चलेगा। तो 8 बोलेगा क्या मेरे को 0 चाहिए, मेरे पास 0 है, मेरे को 1 चाहिए, क्या आपके पास 1 है रूट, हाँ जी है, ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं और इसमें 1 प्लस कर दूंगा। मेरी बिट वाइज क्या थी यहाँ पे, मेरी फोर्थ बिट थी, तो मैं फोर्थ बिट को प्लस कर देता हूँ, मतलब कि 2 द पावर 4, मेरा रिजल्ट जो 8 के लिए आ रहा है उसमें 2 द पावर 4 प्लस हो गया। ठीक है, फिर मेरे पास 1 है, क्या इस नोड के पास 0 है, नहीं है, तो मेरे को 1 पे जाना पड़ेगा, तो मैं कुछ ऐड नहीं करूंगा, मैं यहाँ आ गया। 0 है, क्या इस नोड के पास 0 है, 1 है, नहीं है, तो मैं यहीं पे आ सकता हूँ। इस नोड के पास इस नोड के पास 1 है, नहीं है, इस नोड के पास लाइक लास्ट बिट के पास 1 है, हाँ जी है, 1 है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और 2 to the power 1 प्लस कर दूंगा। मेरा आंसर हो जाएगा 16 + 1 विच इज इक्वल टू 70। राइट, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। इंसर्शन के टाइम पे तो सिंपल इंसर्शन है, उसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड। अगर कोई इंसर्शन समझ नहीं आई तो प्लीज वॉच यस्टरडेज वीडियो, उसके अंदर इंप्लीमेंट ट्राई के अंदर उन्होंने इंसर्शन समझा रखी है। बट अगर आपको फाइंड मैक्स समझ नहीं आया तो ट्राई टू थिंक, जो भी बिट मेरे को मिली है ना इंसर्ट करते टाइम, मेरे को उसका उल्टा चाहिए। इंसर्ट करते टाइम मेरे को सीधा चाहिए था, और जब फाइंड मैक्स कर रहा हूँ तो उसके टाइम मेरे को उल्टा चाहिए, एज सिंपल एज दैट। राइट, लेट अस होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज 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 गेट बैक टू मी, आई विल श्योरली एबल टू ट्राई टू कम्युनिकेट। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आई विल मेक अ न्यू वीडियो अबाउट इट। राइट, लेट अस मूव टू द कोडिंग सेक्शन। सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले साइज ले लेते हैं। सो int इक्वल्स टू array डॉट साइज। ठीक है, फिर एक ट्राई को इनिशियलाइज करना है। डोंट वरी, ट्राई यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं है, वी विल इंप्लीमेंट द क्लास ऑफ ट्राई एंड नोड हियर ओनली, सो प्लीज 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 स्टे ट्यून। ट्राई स्टार, इसको ट्राई नाम रख देते हैं, इक्वल टू न्यू ट्राई। राइट, सिंपली इंसर्ट हो गया, सिंपली इनिशियलाइज हो गया। अब इसके अंदर एक इंसर्ट फंक्शन बनेगा, तो उसके अंदर हमको फर्स्ट एलिमेंट डालना है। सो ट्राई के अंदर इंसर्ट फंक्शन को कॉल करो और उसमें फर्स्ट एलिमेंट डाल दो, दैट इज 0th इंडेक्स। नाउ int result equal to 0 for int I going from 1 I less than n I plus plus, क्या करो, result equal to maximum of जो करंट वैल्यू है रिजल्ट की, और वरना ट्राई के अंदर फाइंड मैक्स करके एक फंक्शन बना देंगे जिसके अंदर जाएगा हमारा करंट एलिमेंट, दैट इज ARR। रिजल्ट अपडेट हो गया, अब ट्राई को अपडेट कर दो। सो ट्राई के अंदर इंसर्ट फंक्शन कॉल करो जिसके अंदर ARR आ जाएगा। राइट, नाउ एट लास्ट रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, अब हमको इंप्लीमेंट करना है ट्राई। ठीक है, सो क्लास कैपिटल टी RI, सेमीकोलन पहले लगा लेते हैं। नाउ इसके अंदर क्या होगा, ट्राई विल ओनली कंसिस्ट ऑफ अ रूट, नोड स्टार रूट। जब ट्राई को इनिशियलाइज करेंगे तो वी आर एक्चुअली इनिशियलाइजिंग द नोड। सो रूट ऑल्सो, जब ट्राई को बनाएंगे तो वी विल हैव टू मेक ऑल द थिंग्स पब्लिक एज वेल। राइट, सो रूट इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, इनिशियलाइज हो गया। नाउ इंसर्ट पहले हमको करना है ना, सो वॉइड इंसर्ट, एक नंबर ले रहे इंट n। ठीक है, नाउ इंट n हमको 31 से 0 तक जाना है, तो पहले टेम्प बना लो। सो नोड स्टार टेम्प इक्वल टू रूट। नाउ फॉर int I इक्वल टू 0, I not 0, it is 31, I greater than equal to 0, I माइनस माइनस। पहले बिट निकालो, int bit इक्वल्स टू n राइट शिफ्टेड बाय I पोजीशंस, और उसका बिट वाइज एंड कर लो 1 से 1। ठीक है, हमको बिट मिल गई। अगर तो मेरी बिट है 0 तो 0 पे इंसर्ट करना है। सो इफ रूट का जो 0 है वो नल है, इन दैट केस इनिशियलाइज। सो रूट का 0 इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, और फिर उसको शिफ्ट कर दो, तो रूट इक्वल टू रूट का 0। सिमिलरली एल्स, मतलब अगर बिट 1 है तो 1 पे चले जाओ, सेम पोजीशन। इफ रूट का 1 है, लेट मी जूम इट इन अ लिटिल बिट, आई रियलाइज अ लिटिल लेट, तो रूट के 1 को इनिशियलाइज कर दो।
न्यू नोड, ठीक है। एंड आफ्टर दिस इफ लूप इनिशियलाइज हो गया होगा, अगर वैल्यू नहीं होगा तो मूव ऑन टू द वन नोड, रूट इक्वल टू रूट का 1, दिस विल इनिशियलाइज योर होल। नाउ हर चेन 32 लेंथ की होगी, बिकॉज वी डिस्कस, जीरो नहीं है तो जीरो डाल दो, वन नहीं है तो वन डाल दो, ठीक है। और 31st से सब कुछ चल रहा है तो 31 टाइम्स तो चेन बनेगी ही, राइट। नाउ इंसर्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको एक और फंक्शन बनाना है जो कि है फाइंड मैक्स, जो कि एक रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू, इंट फाइंड, वी राइट द फाइंड मैक्स, राइट, या फाइंड मैक्स, ये भी एक वैल्यू ले रहा है। इसके अंदर मैंने रिजल्ट को जीरो करा, एक टेम्प बनाया, नोड स्टार टेम्प विच इज इक्वल टू रूट। सिंपली यहाँ पे भी 31st से लास्ट तक ही जाएंगे। फॉर इंट आई गोइंग फ्रॉम 31 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस, इंट बिट निकालेंगे, इंट बिट इक्वल्स टू एन राइट शिफ्टेड बाय आई का एंड ले लो 1 के साथ, ठीक है। अगर मेरी बिट इक्वल टू 0 है, इट इज सिंगल टी, अगर मेरी बिट 0 है तो आई नीड अ 1, चेक करो 1 एग्जिस्ट करता है तो वहां पे मूव करो, आंसर में प्लस करके, अगर नहीं करता तो 0 पे मूव कर सकते हैं। सो इफ ऑल्सो इट इज नॉट रूट हेयर, यहाँ पे टेम्प आएगा, टेम्प टेम्प हेयर, temp here and temp here as well, temp here, temp here. Sorry for the typing mistake guys, I know it's a very silly mistake, I guess मैंने temp को हटा दिया है। yeah. now अब मेरा अगर temp, क्योंकि मेरे को 0 है, मेरे को 1 चाहिए, अगर मेरा temp का 1 नल नहीं है, in that case temp इक्वल टू temp के 1, क्योंकि temp 0 और 1 मिल गया तो जोर होएगा, तो प्लस करना है, क्या प्लस करना है, उस ith बिट। सो रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू लेट्स से ओके, सो 1 को शिफ्ट कर दोगे तो 2 के पावर वो आ जाएगा, राइट। सो इट इज अ बेसिक बिटवाइज ऑपरेशन। सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग ट्राई, आई एम प्री जजमेंटल कि आपको बिटवाइज और आता होगा, बिटवाइज आपको पता होगा, बिकॉज ट्राई इज द लास्ट टॉपिक वी कवर इन द डीएसए। सो दैट इज समवट, अगर आपको नहीं आता डोंट वरी, आई विल श्योर सून रिलीज ऑल द प्लेलिस्ट, राइट। array playlist is in the continuation, it will soon get out on my channel, ठीक है। else temp इक्वल टू temp का 0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे else लगा देते हैं, एंड इफ temp का 0, मतलब अगर मेरी बिट 1 है और मेरे को 0 मिल गया तो temp के 0 पे चले जाओ, temp इक्वल टू temp का 0, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। else temp इक्वल टू temp का 1। हुआ क्या है, जब 0 है तो हमने देखा 1 है कि नहीं, अगर है तो उस पे जाओ, क्योंकि 1 हमारी वैल्यू को बढ़ा देगा। अगर 1 नहीं है तब तो 0 पे जाना ही पड़ रहा है, राइट। सिमिलरली अगर 1 है तो 0 है कि नहीं है, 0 है तो उस पे जाओ, क्योंकि वो हमारी वैल्यू को बढ़ा देगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड इट इज नॉट फिंस मैक्स, इट इज फाइंड मैक्स, ठीक है। इसके बाद जब फॉर लूप खत्म हो जाए तो रिटर्न द रिजल्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हमको बस एक नोड बनाना है, तो एक नोड की क्लास और बना लो, क्लास नोड। क्या करोगे, इसके अंदर 2 वैल्यूज आ रही है बस, नोड स्टार 1, नोड स्टार 0, दोनों को पब्लिक बनाना है। सो पब्लिक कोलन एंड इसका इनिशियलाइजर क्या हो जाएगा, दोनों को नल करके भेज दो, 1 इक्वल टू नल, 0 इक्वल टू नल, एज सिंपल एज दैट। लेट अस ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट एंड होप इट विल रन फाइन। ओके, इट इज गेटिंग एक्सेप्टेड फॉर सैंपल टेस्ट केस, सबमिट और करके देख लेते हैं गाइस। I know that this question is somewhat confusing and I might have like little, you must have felt little lost, but please try to watch it again because it will surely clear your concept. अब कोई भी डाउट रहता है, so you know where I am, you can connect with me on the LinkedIn, on my Instagram or in my comment section, right? So thank you for watching, hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you, have a nice day.